میں ہوں سویرا خالد۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کی لپیٹ میں ہے۔ دھند کے باعث حد نگاہ کم ہونے پر موٹر ویز کو ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ موٹر وے M2، M3، M5 سمیت M11 بھی دھند کے باعث بند کر دیا گیا۔ شہری غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ترجمان موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ ہدایت کی گئی ہے۔ اسی پر مزید تفصیلات جاننے کے لیے بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز زین علی سے۔ جی زین۔ جی بالکل، لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید سردی کے ساتھ ساتھ دھند کی لپیٹ میں ہیں، جس کے باعث شہریوں کے تحفظ کے لیے موٹر وے پولیس کی جانب سے حد نگاہ صفر ہونے کی وجہ سے لاہور سمیت پنجاب بھر کی مختلف موٹر ویز کو جو اس وقت ٹریفک کے لیے بند کیا گیا ہے۔ موٹر وے M2 کو لاہور سے خانقاہ ڈوگراں تک جو ہے وہ گزشتہ رات 9 بجے کے قریب بند کیا گیا تھا، جو تاحال بند ہے، جبکہ موٹر وے M3 کو فیض پور سے رجانہ تک جو ہے وہ گزشتہ رات 6 بجے کے قریب جو ہے وہ حد نگاہ کم ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، جبکہ موٹر وے M11 لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو جو ہے وہ 10 بجے کے قریب جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، جبکہ اسی طریقے سے موٹر وے M5 کو شیرشاہ سے ظاہر پیر تک جو ہے وہ 8 بجے کے قریب بند کیا گیا تھا، جو تاحال اس وقت ٹریفک کے لیے بند ہے۔ جبکہ یہ اس وقت تمام موٹر وے M2، M3، M5، M11 جو ہے وہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے، جبکہ اسی دوران موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو جو ہے وہ غیر ضروری سفر کرنے سے پرہیز کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ دوران سفر گاڑیوں کی فوگ لائٹس کا استعمال کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے، جبکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں 130 پر کال کرنے کی ہدایت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ جو ہے حد نگاہ میں کمی، صفر حد نگاہ ہونے کی وجہ سے ان تمام موٹر ویز کو گزشتہ رات جو ہے وہ بند کیا گیا تھا، جو تاحال اس وقت ٹریفک کے لیے بند ہے۔ جیسے ہی حد نگاہ میں بہتری آئے گی، ان تمام موٹر ویز کو دوبارہ ٹریفک کے لیے۔ جی شکریہ زین۔ نامیاتی غیر نامیاتی ایندھن کا استعمال اسموک کی وجہ قرار۔ گرد و غبار اور گھروں میں جلائی جانے والی گیس بھی اسموک کا باعث بننے لگی۔ چینی ماہرین نے ابتدائی رپورٹ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کو پیش کر دی۔ لیاقت علی کی رپورٹ میں تفصیلات دیکھیے۔ چینی ماہرین کے وفد نے لاہور میں اسموک کے اسباب بارے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ چینی ماہرین کی ابتدائی رپورٹ کے مطابق نامیاتی غیر نامیاتی ایندھن کا غیر ضروری استعمال فضا میں زیادہ نمی اسموک کی وجہ ہے۔ گرد و غبار اور گھروں میں جلائی جانے والی گیس بھی اسموک کے اسباب میں شامل۔ انڈیا سے کول پلانٹ کے ذریعے آنے والی کثیف فضا اسموک کا باعث بن رہی ہے۔ اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ اور نائٹروجن سمیت مختلف عناصر کے مرکب اسموک کا روپ دھارتے ہیں۔ چینی ماہرین نے اعتراف کیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اسموک کے سدباب کے لیے مؤثر اقدامات کیے۔ چینی قونصل جنرل زاؤ شیرن کا کہنا تھا کہ اسموک کا مسئلہ حل ہونے میں وقت لے گا۔ چین نے 7 سال میں قابو پایا۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ چینی ماہرین سے جامع رپورٹ کی توقع ہے۔ اسموک کے سدباب کے لیے چینی ماہرین کو ضروری ڈیٹا فراہم کیا جائے۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں شہری برائلر اور گرم انڈے کھانے سے محروم ہیں۔ مرغی کا گوشت 12 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 624 روپے ہو گئی۔ زندہ برائلر کے دام بھی 8 روپے فی کلو بڑھ گئے ہیں۔ زندہ برائلر ہول سیل 414 جبکہ پرچون ریٹ 430 روپے کلو مقرر کر دیا گیا ہے۔ فارمی انڈے مزید 2 روپے مہنگے، فی درجن قیمت 410 روپے ہو گئی ہے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 12,180 روپے کی فروخت ہونے لگی ہے۔ اسی پر بات کریں گے نمائندہ لاہور نیوز عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر۔ جی بالکل، آج پولٹری مصنوعات کے جو سرکاری نرخ نامے جاری کیے گئے اس میں برائلر کی قیمتوں میں ایک بار پھر جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا۔ برائلر کی سپلائی جو ہے متاثر کر کے قیمتیں جو ہیں بڑھائی گئی ہیں۔ 12 روپے فی کلو تک یہ اضافہ کیا گیا۔ مرغی کا گوشت 612 روپے فی کلو سے مہنگا کر کے 624 روپے فی کلو آج مقرر کیا گیا ہے۔ زندہ برائلر کی قیمت میں 8 روپے تک اضافہ ہوا ہے، جس سے ہول سیل زندہ برائلر 414 اور پرچون زندہ برائلر 430 روپے فی کلو کی سطح پر پہنچ چکے ہیں۔ انڈوں کی قیمتوں میں ہونے والا اضافہ جو ہے وہ رک نہیں سکا ہے۔ آج بھی مزید جو ہے وہ 2 روپے فی درجن تک انڈوں کی قیمت میں اضافہ کیا گیا۔ 408 روپے سے بڑھا کر 410 روپے فی درجن قیمت مقرر کی گئی ہے اور ہول سیل مارکیٹ کے لیے انڈوں کی پیٹی 12,180 روپے کی سطح پر پہنچ چکی ہے۔ مارکیٹ میں جو انڈے ہیں وہ شہریوں کو مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے۔ 450 روپے فی درجن تک انڈوں کی فروخت کی جا رہی ہے اور فی انڈا جو ہے وہ شہریوں کو 40 روپے تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ انڈوں کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ کیا جا رہا ہے اور گزشتہ 2 ماہ سے روزانہ کی بنیاد پر ہونے والا اضافہ جو ہے وہ انتظامیہ کنٹرول کرنے میں ناکام ہے۔
इंतज़ामिया कंट्रोल करने में नाकाम है। अब्दुल कादिर महंगाई के हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सर्द मौसम में भी शहर में 4 से 5 घंटों की बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। अवाम को इस हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। धुंध के बायस ट्रांसमिशन लाइनों की ट्रिपिंग मामूल बन गई। ज़राए के मुताबिक लेस्को की बिजली की तलब 2520 मेगावाट से तजावुज़ कर गई है। NPCC की जानिब से लेस्को को 2020 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। लेस्को को 500 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है। परवाज़ों में ताख़ीर और मुसाफिरों के हकूक़ के खिलाफ वर्जी। सिविल एविएशन ने सीरीन एयर और एयर ब्लू को शोकोज़ नोटिस जारी कर दिए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, राहिल अली की रिपोर्ट में देखिए। परवाज़ों में तवील ताख़ीर और मुतअद्दिद बार मनसूखी। सिविल एविएशन अथॉरिटी का एक्शन, सीरियन एयर और एयर ब्लू को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। नोटिस में कहा गया है कि एयर ब्लू, सीरियन एयर अपने अपने फ्लाइट ऑपरेशंस पर वक्त और बाकायदगी से अंजाम दही में नाकाम रहे। दोनों ऑपरेटर्स ने तस्लीम शुदा रेगुलेटरी कवानीन को नज़रअंदाज किया। एयर ब्लू और सीरियन एयर को माली जुर्माने, लाइसेंस की मुअत्तली या मनसूखी जैसे इक़दाम का सामना करना पड़ सकता है। तयशुदा परवाज़ों की तादाद को कम करने जैसे इक़दाम भी अमल में लाए जा सकते हैं। दोनों ऑपरेटर्स को 7 दिनों में अपने अपने जवाब जमा कराने का कहा गया है। राहिल अली, लाहौर न्यूज़। अखराजात का बोझ कोई ना निकाल सका, महंगाई का तोड़। मार्केट में सब्जियां और फल मनमाने रेट्स पर फरोख्त हो रहे हैं। शिमला मिर्च 250, मेथी 200, गोभी और बैंगन 150, आलू 80 रुपए किलो बिकने लगे। लहसुन 720, अदरक 680, प्याज 270, टमाटर 170 रुपए किलो में फरोख्त हो रहे। जबकि अनार बदाना 950, खजूर 600, सेब 400, अमरूद 160 रुपए किलो में दस्तयाब है। इसी पर तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी बताइए। आज जो इंतजामिया की जानिब से सरकारी नज़रनामे जारी किए गए उसमें 8 सब्जियां जो है वो महंगी की गई हैं। प्याज की कीमतें जो है वो मुसलसल बढ़ रही हैं। प्याज की कीमत में आज मजीद 15 रुपए का इजाफा किया गया। अब 225 रुपए सरकारी रेट में कीमत मुकर्रर की गई है। तहम मार्केट में तरजावल का खुश्क प्याज जो है वो 270 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दीगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ उसमें लीमू 5 रुपए महंगा करके 60 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में ये लीमू 80 से 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद 125 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। लेकिन 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। पालक 5 रुपए महंगी करके 65 रुपए मुकर्रर की गई, लेकिन पालक की फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक की जा रही है। बंद गोभी 5 रुपए इजाफे के बाद 115 रुपए मुकर्रर की गई है। मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। जबकि मटर जो है वो 10 रुपए इजाफे के बाद 250 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में 300 रुपए फी किलो तक मटर की फरोख्त की जा रही है। घिया कद्दू की कीमत में भी 10 रुपए का इजाफा किया गया और आज सरकारी रेट में कीमत भी 120 रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में घिया कद्दू 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फल भी सरकारी नामों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त किए जा रहे हैं, जिसमें सेब काला कुल्लू 290 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में यही सेब जो है 400 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 150 के बरक्स 200, दर्जा दोम का केला 100 के बरक्स 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। ठीक है, तफसीलात से आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया। साबिक सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ शख्सियात की मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा। बिलावल हाउस लाहौर में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सदर डॉक्टर साहिबजादा अबुल खैर मोहम्मद जुबैर की मुलाकात हुई। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतखाबात समेत दीगर अहम अमूर पर तबादला ख्याल हुआ। दोनों रहनुमाओं के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद और 8 निकाती एजेंडे पर इत्तेफाक किया गया। लाहौर के हल्का NA 127 में पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी ने बिलावल भुट्टो की हिमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान शिया पॉलिटिकल पार्टी के रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी पंजाब सेक्रेटेरिएट आमद के मौके पर पीपल्स पार्टी की मुल्क भर में इंतखाबात में हिमायत का ऐलान कर दिया। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीपल्स पार्टी लाहौर के सदर असलम गिल ने कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो NA 127 से कामयाब होंगे। 21 जनवरी को चेयरमैन बिलावल भुट्टो का लाहौर में तारीखी जलसा होगा। जियाले भरपूर शिरकत की तैयारी करें। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर का कहना है कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने शमूलियत की दावत दी है और सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं होता। PTI के लोग NA 127 से बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाएं। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर का पीपल्स सेक्रेटेरिएट का दौरा और सियासी तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी के कायदीन ने चौधरी सरवर को बिलावल भुट्टो की इंतखाबी मुहिम चलाने का टास्क सौंप दिया। साबिक गवर्नर पंजाब ने कहा कि NA 127
1928 में बिलावल भुट्टो की भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहा हूँ। बिलावल का लाहौर से इलेक्शन लड़ना फेडरेशन को मजबूत करना है। PTI के लोग बिलावल भुट्टो को कामयाब करवाएं। NA 128 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ओन चौधरी की इंतखाबी मुहिम जारी है। मेन FC कॉलेज कॉलोनी गुलबर्ग 3 में कॉर्नर मीटिंग का इनेकाद किया गया। कॉर्नर मीटिंग में ओन चौधरी का कहना था कि हल्के के मसाइल का खात्मा, रोजगार और तरक्की के लिए मेहनत से काम करूंगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज कहते हैं कि 8 फरवरी का इलेक्शन पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। इलेक्शन के रोज़ तरक्की और खुशहाली का, अंधेरों और मायूसी का मुकाबला होगा। तफसीलात के मुताबिक नायब सदर मुस्लिम लीग नून हमजा शहबाज ने मॉडल टाउन लाहौर में कारकुनान से खिताब में कहा कि मुस्लिम लीग नून मुत्तहिद और यकसू होकर इस इलेक्शन में जा रही है। हमारा नस्बुलैन आम आदमी की ज़िंदगी में बेहतरी लाना है। इस वक्त मुल्क जिस भंवर में फंसा हुआ है, नवाज शरीफ ही निकाल सकते हैं। हमजा शहबाज का मजीद कहना था कि कारकुनान घर घर मुस्लिम लीग नून का पैगाम लेकर जाएं। मुस्लिम लीग नून का लाहौर में सियासी पावर शो शाह आलम मार्केट में इंतखाबी जलसे का इह्तिमाम। लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। पार्टी रहनुमाओं इमरान गुराया और माजिद जहूर का कहना था कि कारकुन इंतखाबात में हमजा शहबाज को भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी सरगर्मियों में तेजी। शाह आलम मार्केट में जलसा। NA 118 PP 147 के रिहायशी मर्द और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पार्टी रहनुमा इमरान गुराया ने खिताब में कहा, कारकुन जाती रंजिशें एक तरफ रख दें, हमजा शहबाज को इंतखाबात में भारी अक्सरियत से कामयाब करवाएं। आप तमाम तर इख्तलाफात को दूर करके सिर्फ हमजा शहबाज शरीफ की ज़ात को देखें और डोर टू डोर कैंपेन शुरू करें। हमारा मकसद इलेक्शन जीतना नहीं, हमारा मकसद हमजा शहबाज शरीफ को मैक्सिमम वोट दिलवाना है। ये आपका हल्का 147 नहीं, बल्कि इससे भी हट के भी जहाँ जहाँ शेर का निशान है और जहाँ आपका तल्लक है, वहाँ भी आप लोगों को मोटिवेट करें कि शेर पे मोहर लगाएं। आज शेर की जीत आपकी जीत होगी। इमरान गुराया ने मजीद कहा, हमजा शहबाज शरीफ ने बतौर वजीर आला सरकारी अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाया। PTI की तरफ से खराब किए गए पंजाब के मामलात को बेहतर किया। ट्रांसपोर्ट, सड़कों, सेहत, तालीम समेत दीगर मसाइल हल करने पर भी तवज्जो दी। साबिक MP माजिद जहूर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून ने अवाम को अंधेरों से निकालने की पॉलिसी तय कर ली। 8 फरवरी का सूरज मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की नवीद सुनाएगा। मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं ने जलसे में कहा कि हमारे उम्मीदवार इंतखाबात जीत कर मुल्क और कौम की खिदमत करके अवाम की मुश्किलात कम करने के हवाले से भी इक़दामात करेंगे। कैमरामैन बाबर के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्तों का यह मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें मुकर्ररा वक्त में दायर न करने पर वापस कर दी गई हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी शाहिद और अगजई ने कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार अली के कागजात नामजदगी के खिलाफ दरख्वास्तें दायर की थी। शाहिद और अगजई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और चौधरी निसार सुप्रीम कोर्ट पर हमले में मुलव्विस हैं। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पर हमले के मास्टरमाइंड हैं। दरख्वास्त गुजार का मजीद कहना था, सुप्रीम कोर्ट हमला केस अदालत उज़्मा में ज़ेर इल्तवा है। जब तक केस ज़ेर इल्तवा है, मज़कूरा उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं किए जा सकते। रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कानून के खिलाफ कागजात नामजदगी मंजूर किए हैं। अदालत कागजात नामजदगी मंजूरी को कलअदम करार दे। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्तें मुकर्ररा वक्त में दायर न करने पर वापस। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान छिन जाने के बाद लाहौर के कौमी और सूबाई हलकों से अपने हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी गई है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। लाहौर के कौमी और सूबाई हलकों से PTI के हमायत याफ्ता उम्मीदवारों के नाम सामने आ गए। लाहौर NA 117 से अली एजाज बुट्टर, NA 118 आलिया हमजा, NA 119 शहजाद फारूक, NA 120 उस्मान हमजा अवान, NA 122 में सरदार लतीफ खोसा तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार है। NA 123 से अफजाल करीम, NA 124 जमीर एडवोकेट, NA 126 से मलिक तौकीर खोखर इलेक्शन लड़ेंगे। NA 127 में जहीर अब्बास खोखर, NA 128 सलमान
सलमान अकरम राजा और NA 130 से डॉक्टर यास्मीन राशिद की हमायत का फैसला किया गया। सूबाई हलकों में भी PTI उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी गई। हल्का PP 145 लाहौर में यासिर गैलानी, PP 146 जुनेद रजाक, PP 147 मोहम्मद खान मदनी, PP 148 में गुलाम महिउद्दीन दीवान इलेक्शन लड़ेंगे। PP 149 हाफिज जिशान रशीद, PP 150 अब्दुल करीम खान, PP 151 हमाद अवान और PP 152 से नुमान मजीद खड़े होंगे। PP 155 से शेख इम्तियाज, PP 156 अली इम्तियाज वड़ाइच, PP 157 हाफिज फरत अब्बास और PP 164 से यूसुफ म्यू की हिमायत की गई। PP 166 से खालिद महमूद गुज्जर, PP 169 मियां महमूदुर रशीद और PP 171 से मियां असलम इकबाल खड़े होंगे। PP 172 लाहौर से मिसिज मेहर वाजिद, PP 174 से चौधरी असगर गुज्जर तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, जबकि PP 162 से ताहाल उम्मीदवार ज़ेरे इल्तिवा है। लाहौर हाईकोर्ट ने परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद इशफाक। चौधरी परवेज इलाही की अहलिया कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी की मंजूरी का मामला लाहौर हाईकोर्ट ने कैसरा इलाही के कागजात नामजदगी मंजूर करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के तहरीरी फैसले के मुताबिक रिटर्निंग अफसरों ने कैसरा इलाही के NA 64 और PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी फैसला बरकरार रखा और करार दिया कि दरख्वास्त गुजार ने मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात में एक बैंक अकाउंट दिया, जबकि रिकॉर्ड के मुताबिक कैसरा इलाही ने 3 हलकों के लिए 3 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट दिए थे। इन हकाइक की रोशनी में कैसरा इलाही की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। लार्जर बेंच में जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस जवाद हसन भी शामिल